will be half of. कितना? How much? The charge remaining will be half of initial charge. No, it will not be half. The final energy is half of the initial energy. That's what is given. Q final. U final is half of initial. How did you do it? How did you do it? बोलिए कौन से फार्मूला से किया? So Q by 2C. Q by 2 तो डायरेक्ट हो गया ना. आपको एनर्जी में क्या लगाया अभी? एनर्जी का फार्मूला बताइए. Let Q be the final charge. ठीक है. जब हाफ एनर्जी हो गई बस एनर्जी का फार्मूला पुट कर दीजिए. Q स्क्वायर बाई 2C और ये हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई 2C. 2C कैंसिल हो गया. Q नॉट बाई √2. Energy depends upon the square of the charge. All right. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Another question was there. Now we are going to do the transformers. Transformers are the devices which will, suppose we want high voltage or low voltage. That's what we do in our charger. Charging is done at low voltage. What we do, we put the charger and charge our cell phone. So AC has the advantage of decreasing or increasing to the any amount by changing the number of turns in the coil. So that is done by the transformer. Transformer are the devices which can easily increase or decrease the AC voltage. They will work for AC voltage. So it transforms or changes AC voltage, increases or decreases both. Power transmission, we need high voltage transmission. It will be increased to many hundred volts so that losses will be decreased. But whereas at homes, we need lesser voltage, like for example, charging or in TV or in stereo sound system and all, we need lesser voltage. So that is easily done by the transformer. So they are very useful devices as far as changing of AC is concerned, AC voltage is concerned. The principle is based on the mutual induction because there will be two coils, one and other. यहाँ से mutual induction से voltage will be transferred to the other one. They are not directly connected to each other. There is some gap. They are insulated from each other. Then also voltage is easily transferred from one to other with a phenomena called mutual induction. Next. So purpose and mutual induction both should be very clearly known. Okay. Principles are some principle is asked in sometimes short questions. All right. You can see here two coils. One is here called primary. It will be connected to main supply power source.
it will be connected to AC. Then secondary is here. It will be from here, output will be taken. All right. And this will be the soft iron core. ये दिख रही है आपको? ये soft iron core रहेगी. और insulator रहेगी. That will be insulated because there should not be eddy current losses. Insulated means there will be the metal strips, then insulator in between. So insulator is inserted in between to reduce the losses of eddy current. Okay. Overheating also. Lot of overheating is done. So therefore insulated core is used. Or we can use this type in which primary and secondary are one over other. ये दोनों एक दूसरे के one over the other है, तो flux losses will be less. इसमें flux leakage हो सकता है, but reduce flux losses in this. Flux leakage we can say. Again, primary will be connected to AC, and from here output is taken. So this is preferred because in this flux leakage will be lesser. ठीक है. और ये coils में पूरा coils will be insulated. They will have the thin insulation over them, so that current should be not crossing over from one to other. एक दूसरे के live contact में नहीं है. Neither they are in live contact with the core which is metallic, and nor in live contact with the other secondary coil. सब they are just insulated from each other also. जैसे अपनी जो वायरिंग है डोमेस्टिक वायरिंग, उसमें प्लास्टिक की कवरिंग दिखाई पड़ती है, इंसुलेशन बोलते हैं उसको. हियर प्लास्टिक कवरिंग may not be there, they may be painted, insulated painting must have been done in that, very thin painting in mls and all. Got it? That's how construction goes. And working में क्या लिखेंगे हम, इसका रिलेशन निकालने जा रहे हैं. what we are इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स. कितने फर्स्ट में टर्न्स है, कितने सेकंड में टर्न्स है. तो लेट्स सी वर्किंग व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी. ओके, यहाँ पे देखो, व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी इनपुट सप्लाई, देन ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स there is the induced EMF in the secondary coil, as I told you, by mutual induction. Output depends upon the ratio of number of turns. So phenomena involved is mutual induction, and output involved is number of turns in primary and secondary. All right. तो थियरी में देखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं इसका, नंबर ऑफ टर्न्स का. क्लियर यहाँ तक? लेट्स सी थियरी में क्या दिया है. नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, थियरी में, ओके, थियरी पार्ट इज ओके. लेट अस देन आई विल शो यू. नंबर ऑफ टर्न्स पहले लेंगे. प्राइमरी में एनपी, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग समटाइम्स वी कॉल इट primary coil or winding, and NS as the number of turns in secondary coil or secondary winding. We consider ideal transformer in which resistance of primary and secondary is negligible. Copper की wires होती हैं, resistances are almost zero or very close to zero. Aluminium wiring में थोड़ा सा resistance is more. They are not ideal, but copper wiring, pure copper wirings are close to ideal transformer. ठीक है. And in which their ideal transformer in which resistance of primary and secondary is negligible, and all flux in core links with the all flux in the core links with both the primaries and secondary. जितना है यहाँ पे core, this we can we call it core. ये भी core है. Let phi be the flux linked to each turn at time t due to current in the primary. Phi the flux in each turn. तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स के लिए और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए.
So VP is the applied voltage in the primary. Induced EMF in the secondary will be, secondary में कितना induced EMF होगा? ES is equal to minus NS, number of turns in secondary, and into rate of change of flux. It is nothing but a second law. ठीक है? Changing flux phi also induces EMF called back EMF or self-induced EMF. है ना? Back EMF or self-induced EMF in the primary, which is given by EP is equal to minus NP d phi by dt. है ना? All right. Therefore, but induced EMF should be equal to the applied voltage. Induced EMF कितना होना चाहिए? Applied voltage के बराबर होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, if this is not the case, so current in the primary would be infinite because resistance तो है नहीं primary में. है ना? So whatever voltage we apply, same EMF is induced in opposite direction. Net applied voltage will be zero. Net voltage will be zero. Therefore, current जो है control हो जाता है. No current in fact. And since resistance is zero in the primary, देखो जैसे हम लोग चार्जर को लगा के रखते हैं ना, चार्जर जनरली ऑन भी रह जाता तो प्रॉब्लम नहीं होती. चार्जर की जो ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर हम दिस वन चार्जर जब हम प्लग इन करते हैं ये 220 वोल्ट में लगा रहता है, तो इसमें करंट फ्लो होता रहता है प्राइमरी में. इधर हम जब चार्जिंग में लगा देते हैं सेल फोन को, यहाँ पे चार्जिंग ठीक है नहीं लगाया है, कभी भी स्विच ऑन है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. कभी हम ऑफ करना भूल भी जाते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो करंट फ्लोज इन द प्राइमरी. जितना अप्लाइड वोल्टेज है वीपी उतना इसमें बैक साइड में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है. तो नेट वोल्टेज इज जीरो व्हेन नो लोड इज देयर. इस तरफ कोई लोड नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. स्विच ऑन रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहती. तो अप्लाइड वोल्टेज and induced EMF both are equal. So applied voltage will be how much? Minus NP d phi by dt. इतना applied voltage हो गया. ये point extra point है just for your knowledge. और current is negligible, मतलब current is zero or current is very close to zero, which doesn't make much डिफरेंस. अगर थोड़ा बहुत करंट है भी तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. हाँ अगर ये कॉपर वायरिंग नहीं है, कुछ एल्युमिनियम वायरिंग है, देन इट विल बी स्लाइटली, देन आल्सो इट विल बी वेरी स्मॉल. बट हीटिंग इफेक्ट यू कैन सी, इफ यू टच द चार्जर थोड़ा हीट अप हो जाएगा अगर कॉपर वायर अंदर यूज नहीं किया है, एल्युमिनियम वायर यूज किया. ठीक है. तो ES सिमिलरली यहाँ भी देखो जितना आई मीन जो इंड्यूस ईएमएफ होगा सेकेंडरी में उसको हम वोल्टेज VS लिख देंगे. यहाँ भी वोल्टेज लिख रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, बिकॉज in both places we are writing voltage, है ना. तो सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ is called voltage across secondary. So divide which will be how much? Same number of d phi by dt. तो change of flux तो सेम है and सेकेंड लॉ से नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दैट इज अगेन सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ. तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी, प्राइमरी का हमने यहाँ से लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दो. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो सेम लिंक हो रहा है दोनों में, दे विल गेट कैंसल. तो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन आउटपुट अपॉन इनपुट. कैन यू सी whole thing? दिख रहा है आपको? तो इसको एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ टर्न्स, आउटपुट टर्न्स टू द इनपुट टर्न्स इज कॉल्ड टर्न और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. टर्न रेशियो भी बोलते हैं इसको, और वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, it will be called step up transformer. Less than 1,
it is the step down transformer. Got it? तो देखो इसमें all the things are very clear. पहले मैं नीचे अलग से दिखा देता हूँ, दो पार्ट में इसको देख सकते हो। देखो पहले तो ये है आपका 3 पार्ट में हमने सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ निकाला, इसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे। एंड प्राइमरी का निकाला, उसको हम लोग प्राइमरी वोल्टेज, विद दैट इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी विल बी कॉल्ड voltage in the primary, and induced EMF is equal to the voltage in primary, and similarly output induced EMF will be voltage in the secondary. दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो rate of change of flux are equal in both because both are in the same core, so it will be the ratio directly proportional. देखो secondary will be more if you keep the number of turns more. अगर आपको बढ़ाना है ना, you have to make it from 220 volt, you want 10,000 volt. In same proportion, you increase the number of turns in secondary. घटाना है तो reduce the 1/10 करना है, तो number of turns in secondary you make it 1/10, 22 volt रह जाएगा. That's what is done in mobile charger. Cell phone के charger में secondary में number of turns are reduced significantly, so voltage comes down to the 10 volt or less, ठीक है। and this ratio of turns is called turn ratio or transformer ratio, transformation ratio. If it is greater than 1, it will be step up transformer, which is used in the power transmission. Power transmission में use करते हैं इसको high voltage supply पर, और less than 1 में step down, which we use it in our mobile charging and other electronic circuits. Got it? So this is useful relation. Noveka's point of view. Clear? NS upon NP is नहीं, VS upon VP is NS upon NP. वोल्टेज का जो रेशियो है प्राइमरी एंड सेकंड में, अप्लाइड वोल्टेज एंड रिसीव्ड वोल्टेज है ना, सेकेंडरी में हमें मिलेगा ये जो हम चार्जर की जो वायर लगाते हैं मोबाइल सेल फोन में, उसमें से VS वोल्टेज आता है, कम आता है बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उसके आउटपुट पर, सेकेंडरी पर। गेटिंग इट नॉट? आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ में आ गया कैसे वर्क करता है ये। नंबर ऑफ टर्न्स ही है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल, but working is reducing or increasing is of voltage is based on the number of turns, ratio of turns. ये secondary is this one here. ये secondary है, ये primary है। इसका सिंबल ऐसे रहते हैं, वो ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे रहता है, वन कॉइल, देन बीच में ये कोर को रिप्रेजेंट करता है, other coil. These are the coils. Primary means primary coil or primary winding. Secondary means secondary coil or secondary winding. जैसे सोलेनॉइड में हम वाइंड अप करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सोलेनॉइड में क्या करना पड़ता है, बिल्कुल टचिंग ऐसे, दे शुड नॉट ओवरलैप, ऐसे दे शुड बी क्लोज। इसमें ओवरलैप भी होती है, वन ओवर द अदर। नंबर ऑफ टर्न्स आर इंपॉर्टेंट। All right, let's see. Now, let's see the efficiency of transformer. There may be some losses. Transformer में कुछ loss हो सकते हैं। कौन से loss हो सकते हैं बताइए? लॉसेस तो वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर लॉसेस मिनिमम है, लॉसेस मतलब हीट एनर्जी
कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, कुछ हिस्टेरेसिस लॉसेस में जा सकती है. डू यू रिमेम्बर हिस्टेरेसिस लॉसेस? सम एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू एडी करंट. उसको मिनिमाइज करने के लिए हम इंसुलेटेड कोर यूज करते हैं एंड सो ऑन. तो बट गुड थिंग इज दिस, देयर इज नो रनिंग पार्ट्स लाइक मोटर्स में रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, उसमें फ्रिक्शन होता है, उसमें लॉसेस होती है एनर्जी. बट ट्रांसफार्मर में नो रोटेटिंग पार्ट्स आर देयर, नो रनिंग पार्ट्स आर देयर, है ना. So therefore efficiency is more in this case as compared to motors and all. So efficiency is nothing but a output power to the input power. Efficiency is nothing but a ratio of output power. Can you see it? Ratio of output power to the input power. Output to the input. And power में क्या लिखते हैं? VI, P is equal to VI, VIP. तो आउटपुट पे secondary voltage into current in the secondary winding, and input is primary voltage into current in the primary winding. तो ये हो गया आपका. For ideal transformer where no losses are involved, efficiency will be 1. 1 means 100%. 100% हो गए. यहाँ पर 1 आ जाएगा. ये this will be 1. राइट साइड में सेम एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड चेंज कर लो. यहाँ पे VS अपॉन VP देखते हैं तो करंट का इनवर्स हो गया अभी, IP अपॉन IS. नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट यहाँ पर इनवर्स है ना, यहाँ पर इनवर्स हो गया. बिकॉज इफ यू वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज, करंट विल बी ड्रॉप, है ना. Product should be same. This indicate the power, or product of V and I indicate the power. In other words, energy. Energy cannot be multiplied. Energy cannot be magnified. Energy को हम बढ़ा नहीं सकते. अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कम हो जाएगा. वोल्टेज बढ़ाना चाह रहे हैं तो करंट डिक्रीज होगा. वोल्टेज घटाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा. प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट. Maximum output can be equal to maximum output can be equal to input. S is in the subscript. ये subscript में है. S represents secondary. So for ideal transformer, we have this ratio. Voltage and turns are in proportion, but current is reciprocal. Okay. So we can have some numericals on this. Okay, seen? Done? Done, sir. Okay. So let's see numericals are there. देखो यहाँ पर देखो ये आपका ट्रांसफार्मर है. दिस इज द ट्रांसफार्मर. रेशियो ऑफ टर्न्स आर 100. सेकेंडरी में 100 times more than primary. If this is 10 volt battery is connected, what will be the output voltage? Output voltage कितना मिलेगा इधर? Can you find out? Ideal transformer है और efficiency कुछ if efficiency is not mentioned, so we are going to use this formula.
अगर कुछ आइडियल नहीं भी लिखा है, दे आर नॉट गिवन द एफिशिएंसी, इट मींस इट इज आइडियल। अगर एफिशिएंसी दी होगी 80% 90%, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। और इसके लिए तो वोल्टेज वोल्टेज के लिए तो एफिशिएंसी नॉट रिक्वायर्ड है। वोल्टेज में केवल डायरेक्ट रेशियो है, नो कंडीशन फॉर एफिशिएंसी। करंट के लिए देखना पड़ता है। व्हाट्स द आंसर? क्या आंसर होगा? बोलिए, आर यू देयर? Yes, sir. Sir, 1000 volt. कैसे? हाउ 1000? हाउ इट इज 1000? Sir, Vs by Vp is equal to Ns by Np, which is equal to 100. बट यहाँ पर हमने बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में देखा था, इट वर्क फॉर एसी ओनली। देखा था एसी के लिए वर्क करता है, बट वी आर कनेक्टिंग डीसी हियर, नथिंग विल हैपन, नो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, आउटपुट विल बी 0 since transformer work for AC, not for DC. म्यूचुअल इंडक्शन होना, इसमें इंड्यूस ईएमएफ होना चाहिए ना, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना से। तो नथिंग, यू विल नॉट रिसीव एनी आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ही नहीं। गॉट इट? डायग्राम में नॉट जनरली बी गिवन, बट इसमें दिया होगा कि प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द डेनियल सेल और लेक्लांशे सेल, जो भी नाम है, जो भी सेल्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो इनपुट इज कनेक्टेड टू दैट सेल, how much will be the output if number of ratios and number of turns are given, बैटरी का वोल्टेज भी दिया होगा। तो बी केयरफुल, इफ यू कनेक्ट द बैटरी, ट्रांसफार्मर डजंट वर्क। उन्होंने लिखा था बिगिनिंग में एसी वोल्टेज को चेंज करते। गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन देखो, ये टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर at 2300 volt to the step down transformer, with its primary having the 4000 turns, NP is given 4000, and ये आपका, और देखो ये समझ, इसमें देखो कभी कभी इनपुट दिया या आउटपुट दिया वो नहीं समझ में आता समटाइम, तो यू रीड अप टू द लास्ट, what should be the number of turns in the secondary, all right, in order to get output. आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी दिया है आपको 230, एंड दिस इज इनपुट, दिया है डायरेक्ट इनपुट दिया ही हुआ है ना। कभी कभी वो दिया नहीं रहता है कौन सा वोल्टेज है, वी डोंट गेट टू नो इन द फर्स्ट लाइन, बट लास्ट में क्या पूछा है उससे पता लग जाता है। पुट द वैल्यूज, यू विल गेट नंबर ऑफ टर्न्स 400। सेकेंडरी में कम होगा, देखो इनपुट इज 2300, whereas we want 1/10, तो नंबर ऑफ टेंस भी 1/10 हो गए। 4000 से they are reduced to 400 turns only. Got it? ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन,
primary of transformer has 40 turns and works on the 100 volt and 100 watt. Find the number of turns in the secondary to the step up number of turns in secondary to step up voltage to 400 volt. 100 से 400 करना है. Also find the current in the primary and secondary. पहले तो find the number of turns in secondary. तो सेम है अगेन. अगर आपका वोल्टेज 400 हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 4 टाइम्स होने चाहिए. फॉर्मूला लगा के करिए. इसको कर लेना आपने. जस्ट डू इट योरसेल्फ. डू इट योरसेल्फ. करंट निकालने के लिए P इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. VIP वाला. VI इक्वल टू P. ऑलराइट. दिस यू डू योरसेल्फ. ये भी कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन में. क्या करना चाहिए बाय द वे? व्हाट कैन she do to operate it at USA standard 120? Friend returns to the United States from Europe with 960 watt coffee maker designed to operate from 220 volt. What can she do to operate it in USA standard 120? USA में कम है देखो 120. एक्चुअल में 110 है. 120 or 110 वेरी क्लोज टू दिस. यस क्वेश्चन के लिए हमने राउंड फिगर लिया होगा. You in Europe they are having 240, almost similar to the India 230 220 India में. तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है. तो what can she do to operate this? उसको ऑपरेट करना है ना. क्या करना चाहिए बोलिए, सो दैट वो फुल पावर पे ऑपरेट हो. टर्न्स रिड्यूस कर सकते. ट्रांसफार्मर यूज करना चाहिए. he should use the transformer to step up from 120. नहीं अच्छा उसको सॉरी 240 पे है और 120 पे. तो he should use the step down transformer. She should use the step down transformer to of course transformers are available in the market. है ना. Turn ratio half है ना, like that. Voltage will be reduced to half. ये अपने जो चार्जर हम लगाते हैं, ये अपना इवन लैपटॉप में भी जो चार्जर लगाते हैं, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफार्मर. लैपटॉप में चार्जिंग के लिए जो बड़ा दिखता है वो, और अपना सेल फोन का छोटा रहता है. तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर यू कैन गेट इट. ऑफ कोर्स उसके बाद इसमें डीसी भी कन्वर्ट होता है. इसमें क्या होता है कि डीसी भी चाहिए चार्जिंग के लिए. ट्रांसफार्मर विल स्टेप डाउन बट इट विल रिमेन एसी. तो उसमें व्हाट इज कॉल्ड रेक्टिफायर लगा के, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, है ना. बट कॉफी मेकर में वी डोंट नीड डायरेक्ट डीसी एंड ऑल, है ना. तो उसमें तो करंट गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, गोइंग क्लॉकवाइज, बोथ केसेस हीट विल बी प्रोड्यूस. तो ओनली ट्रांसफार्मर विल वर्क, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक. तो बाकी पॉइंट्स तो सेम है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया, सिमिलर टू दैट है. यू कैन ट्राई दिस आल्सो. ऑलराइट.
voltages are RMS value, as I told you, जो transmitting, जो supply voltage होते हैं RMS voltage होते हैं वो, whether it is in India or in other countries also, same rating is done, same rate is defined. All right. देखो यहाँ पर ओके ठीक है, तो ये जस्ट इसको जस्ट समझ लेते हैं इसको। जैसे पावर का एक क्वेश्चन समझते हैं, आई मीन एफिशिएंसी का। इनपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100 watt and efficiency is 80%. Find the output power. तो आउटपुट पावर फार्मूला लगा दो, एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर 0.8, 80% मीन 0.8, आउटपुट पावर वी नीड, इनपुट पावर इज 100, तो 80 वाट है ना, एफिशिएंसी 80 है तो पावर भी 80% रह जाएगा है ना। एंड करंट इन द सेकेंडरी इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ohm, तो सेकेंडरी मीन्स आउटपुट, output is equal to output power is equal to current in out secondary into resistance of secondary. तो output power we have 80, secondary current निकालना है, resistance कितना दिया 100, तो it is 0.8 under root of that. तो heating effect वाले क्वेश्चन देखते हैं, अपना heating effect के जो फार्मूले हैं they are used here. I'll just bring it here. Clear? Losses जो है, why the efficiency can be down? Because we cannot completely eliminate the losses. Efficiency has to be 90%. We can increase the efficiency, but it cannot be 100% because there are some losses in the transformer. एक तो flux leakage है, flux थोड़ा बहुत एयर में जा सकता है, लीक हो सकता है, सिस्टम से बाहर जा सकता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इट इज रिड्यूस बाय प्लेसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन ओवर अदर। जो दूसरा डायग्राम दिखाया था ना, इनफैक्ट जो फर्स्ट डायग्राम था, कॉइल्स आर वन ओवर अदर, सेकंड डायग्राम में राइट हैंड साइड के डायग्राम में अलग अलग था, वन प्राइमरी वाज ऑन वन ऑफ द आर्म्स, सेकेंडरी वाज ऑन सेकंड। तो इसमें क्या है, वन ओवर द अदर पुट कर सकते हैं, बीच का जो आर्म है उसी के ऊपर, जैसे प्राइमरी है ना, और अदर साइड से सेकेंडरी, लाइक दिस, वन ओवर द अदर। तो फ्लक्स लीकेज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, देयरफॉर एफिशिएंट लॉसेस विल बी लेस। और इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज करते हैं, तो वो कन्फाइन करके रखता है। आल्सो यूज द सॉफ्ट आयरन कोर, आल्सो soft iron core is used so that flux air में नहीं जाना चाहिए। Soft iron core has got, I mean, iron has got, it is ferromagnetic, therefore field lines will tend to remain inside it, they will not go in air. Second one is what is called resistance of windings. वाइंडिंग्स में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता है, तो अगर सपोज करंट फ्लो हो रहा है उसमें I square R will be the losses, R is the resistance of the winding. In case of thick winding, थोड़ी thick winding रहेंगी, resistance will be further reduced. As I told you, copper winding रहेगी, it will be further reduced. Copper की जो है primary and secondary winding, copper की यूज करते हैं, pure copper, तो less resistance, less losses. थिक कर देंगे तो और कम हो जाएगा, थिक का रेजिस्टेंस और कम होता है। एडी करंट पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में, बिकॉज ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लक्स। एसी में क्या होता है, करंट गोज अप, फील्ड गोज अप, फ्लक्स गोज अप, फिर डाउन हो जाता है।
तो continuous changing nature of flux, there is the induced EMF called induced EMF. There is the induced current also. That induced current in the bulk metal is called eddy current. तो जो कोर है उसको इंसुलेटेड कर देंगे, बीच में इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन. Eddy currents are confined to the small areas, which will be drastically reducing the heating effect. Otherwise, core will be heated up, and to the large amount. It is heating up to the very high temperature, you know. तो इंसुलेटेड अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम्स आती है. फिर भी प्रॉब्लम आती है, इंसुलेट करने के बाद भी हीट अप हो जाता है, तो कूलेंट भर देते हैं. इट इज केप्ट इनसाइड द, इसको कूलेंट फिल कर देते हैं. इंसुलेटेड है वैसे वाइंडिंग, ऑल वाइंडिंग्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर and also from the soft iron core. So therefore coolant can be filled inside. जैसे कार में कूलेंट भरते हैं, इसके ट्रांसफार्मर के अंदर भी, बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर कूलेंट इज आल्सो यूज्ड. कूलेंट में लिक्विड होगा which will have its lesser temperature. लिक्विड का टेम्परेचर कम ही रहता है ना. तो it will absorb the heat and just transfer to the surroundings. But after the continuous use, it also gets heated up. But evaporate होती है heat, so it remains under control. But summer में problem आती है. After, because temperature goes up, so heat goes up, so sometimes shorting हो जाती है. Insulation melts and transformer gets short circuited, and you have to change its windings. All windings should be changed. Primary, secondary के coil change करने पड़ते हैं. Hysteresis is the other one. Do you remember hysteresis क्या था? Loop बनाया था ऐसा? क्या था? That loop indicates what is called. That loop Energy indicates loss. energy loss, है ना, per cycle. तो narrow loop वाले material use करेंगे. Soft iron core has less hysteresis losses because its loop will be narrow. Energy loss per cycle will be reduced. Got it? Short notes वगैरह, ये short questions you can expect. Use of transformer in the transmission of electrical energy. Transformer transmission system में very useful to reduce the losses in the wiring, in the supply wires. The voltage output of transformer is, उसको बढ़ा देते हैं काफी. Stepped up so that current is reduced. Formula क्या है? Power transmission में formula is I is equal to E by V. If voltage goes up, current comes down. So losses are I square are reduced, and current कम हो जाएगा तो losses कम हो जाएंगे. And finally, voltage is reduced before distribution to the homes and businesses. जब सिटी में सप्लाई पहुंच जाती है, उसको फिर से 220 वोल्ट पे ले आते हैं. Generation is then at 440 volt, and then it is transmitted to the many thousand volts to reduce the losses. And then when it comes to the cities, then it is brought back to 440 or 220. Commercial supply में 440, otherwise domestic supply में 220 volt. ठीक है. This is the question. Just do question. We can do it. Time is there. तो देखिए, यदि ये question है, it's sometimes being asked in the board's examination every after 3-4 years. 2 बार आ चुका है, but not regularly. A small town with the demands 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from the electric power generating plant at 440 volt. ये जैसे अपना कुराड़ी पावर स्टेशन है ना, roughly same distance from here. तो उसका
this much is the wattage and डिमांड इतनी है सिटी में, सपोज नागपुर में इतनी है 220 वोल्ट पर, and it is 15 kilometer away from the power generating plant which is generating at 440, इतने पे जनरेट कर रहा है वो. The resistance of two wires is 0.5 ohm per kilometer. दो वायर से सप्लाई आ रही है and उसका रेजिस्टेंस 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line through the this step down transformer. कितना है? 4000 पे आ रही सप्लाई है ना, 4000 पे उसको बढ़ा दिया गया, 440 था उसका, 4000 पे ट्रांसमिट किया गया एंड सिटी में ऑफ कोर्स हमें स्टेप डाउन करना है कितना, 220 पे. सिटी में आ गई सप्लाई, वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू द 220. इट मींस 4000 वोल्ट पे ट्रांसमिशन हो रहा है एट सब स्टेशन इन द टाउन, है ना. तो वहां पे ये टाउन में ये ट्रांसफार्मर लगे, इसका मतलब इट इज कमिंग एट 4000 and we have to bring it down to 220. Estimate the line losses in form of heat. Line में जो losses हैं wires में, high transmission wires दिखती, when you travel in the train or buses you see that कहीं rural area में जाते हैं तो आपको high transmission wires दिखती हैं, so they are the wires which brings the supply to home, to the city in fact. तो resistance पहले निकालना पड़ेगा, कितनी 15 किलोमीटर है wires and two wires में आ रही सप्लाई और 0.5 ohm per kilometer. Total resistance will be 15 ohm. ठीक है, तो लाइन और हाँ यहाँ पे उन्होंने निकाला 15. ओके, दिस इज डन, ऑलरेडी डन. 15 ohm. नाउ करंट निकालना है. करंट इज I is equal to P by V. यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ. ओके, फार्मूला लिखा है पीछे, ये सोल्यूशन है. आपकी टेक्स्ट बुक में फार्मूले नहीं लिखे, उसमें मैंने फार्मूले लिख दिए. दो I is equal to P by V. पावर कितना है? 800 किलोवाट दिख रहा है, किलो मीन्स 1000, ये 1000 आ गया. डिवाइड बाय कितने ट्रांसमिशन हो रहा है? 4000 पे, डिवाइड बाय 4000, तो 200 एम्पियर करंट आ गया. तो देयरफॉर लॉसेस I स्क्वायर R, 200 स्क्वायर इंटू 15, रेजिस्टेंस जो 15 निकाला हमने वायर्स का, तो दैट कम्स टू बी 6000 किलोवाट. किलो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है. तो इधर से रब कर देता हूँ, सामने फार्मूले लिखे हुए हैं. ओके, नाउ दिस मच इट इज ह्यूज लॉस, है ना. तो पावर सप्लाई प्लांट को कितना 600 किलोवाट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. इट इज मेंट फॉर 800, तो जितना लॉस हो रहा उतना उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो 14 भेजना पड़ेगा, 14 किलोवाट. तो रास्ते में 600 किलोवाट विल बी लॉस्ट एंड कितनी चाहिए, इतना बैलेंस बच जाएगा. बट इनफैक्ट होगा कि अगर हमने इसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस हो सकता है, दैट दे हैव जस्ट नेग्लेक्टेड, है ना. एनीवे, तो अदर फर्दर लॉसेस वी आर नॉट काउंटिंग. तो 600 का उसको एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा पावर भेजना पड़ेगा, टोटल इतना डेवलप करना पड़ेगा उसको, रास्ते में इतना ड्रॉप लॉस हो जाएगा. तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा रास्ते में. 200 करंट है एंड कैलकुलेट किया और 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो 3000 का लॉस हो जाएगा वोल्टेज का भी. तो जो 4000 पे भेज रहे थे तो उसको प्लस 3000 ऐड करके 7000 पे भेजना पड़ेगा, तो लॉसेस, है ना. तो 7000 पे, तो उसमें पूछा है कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट, 7000 का बनाना पड़ेगा. 7000 का बनाना पड़ेगा सिटी, और 440 तो उसका जनरेटर का है, जनरेटर इज प्रोड्यूसिंग दिस मच 440. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर शुड बी 7000 बिकॉज 3000 वोल्टेज रास्ते में लॉस हो जाएगा. तो सिटी में जब पहुंचेगा तो व्हाट वी गेट 440, आई मीन कितना 4000 मिलेगा. हाँ, तो 4000 मिलेगा ना, 3000 लॉस हो जाएगा. तो सिटी में जब पहुंचेगा 3000 लॉस, तो 4000 और उसको कहाँ लाना है, 220 वोल्ट पे रिड्यूस करना पड़ेगा. दैट रिमेन सेम. सिटी का जो है
वो चेंज नहीं होगा। फिर ये इतना रहेगा, उसमें कुछ नहीं चेंज करना, बट जो रास्ते में लॉस हो रहा है 3000, दैट यू हैव टू सेंड इट एक्स्ट्रा। 7000 भेजेंगे, no further losses are counted at higher voltage and higher wattage। तो जो कैलकुलेशन आया उतना एक्स्ट्रा भेजना है। 6000 का लॉस हो, 600 किलो वाट का लॉस हो रहा है तो उतना एक्स्ट्रा भेजना है ना। यू हैव टू जस्ट ensure that this much extra is produced, this much is sent on the way। 3000 voltage will be lost, so you have to ensure 7000 भेजना है voltage, 3000 will be lost। सिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिटी में then we'll get the how much we'll get, whatever is required, this much and 4000 losses होने के बाद इतना बच जाएगा, that's what is required। ठीक है, इसका फॉलो अप क्वेश्चन दिए, जस्ट 1 मिनट। तो अभी इन्होंने बोला है कि देखो what we do if we send it at 40,000, then how much is the losses। 40,000 पे फिर से वही प्रोसेस, करंट निकाल लो P by V से, it is coming 20, losses निकाले तो it is coming down 6 किलोवाट लॉस हो गया I स्क्वायर R से। ठीक है, तो उतना एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, है ना। तो दिस मच एक्स्ट्रा यू हैव टू सेंड इट, एंड वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है 300, तो उतना एक्स्ट्रा भेजिए। 40,000 है तो फिर 300 ऐड कर दीजिए, है ना। 40,300 होना चाहिए, तो इतना लॉस होकर हमें 40,000 ही मिलेगा। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा सिटी में, दैट विल बी 40,000 डैश 220, 40,000 को 220 पे ले आएगा। वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसफर, रिस्की होता है, काफी रिस्की होता है ये, है ना। तो दैट्स ऑल। तो कितना लॉस हो रहा है देखो, 6 पहले में 600 चाहिए था, भेजा कितना 1400, तो 43% का लॉस हो गया। सेकंड केस में कितना 6 लॉस हो रहा है केवल, और भेजा कितना 806, 0.74% का लॉस हो रहा है। इफ वी डू द ट्रांसमिशन एट वेरी वेरी हाई वोल्टेज 40,000, 10 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा दिया, पहले 4000 पे भेजा था, तो देयर इज वेरी ह्यूज लॉस 43%। when we send it at 40,000, only 0.74% loss हो रहा है। और this is all about your what is called transformer। तो ये question sometimes they are asked, not that frequently, but you should know। फार्मूले मैंने ये जस्ट you can take the फार्मूले लिखे, कौन से फार्मूले से कैलकुलेशन किया। ये तो यूनिटरी मेथड से 30 किलोमीटर बाहर है दोनों मिला के, और 0.5 पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो दिस इज जस्ट यूनिटरी मेथड, अदर्स आर फ्रॉम दिस फार्मूला। जितना लॉस हो रहा है वोल्टेज का उतना ऐड करके भेजना है, जितना वोल्टेज का लॉस हो रहा है उतना ऐड करना है। 4000 का तो 7000 वोल्ट भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में थिंग्स आर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, इतना लॉस हो रहा है उतना एक्स्ट्रा आना चाहिए। वोल्टेज का भी 300 लॉस हो रहा है तो 40,300 आना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। Sir, can you Okay. show the working of transformers? Okay. This much you can see together. Next page, उसके बाद का देखो। Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Sir, can you please Yes. show that use of transformer in transmission one? Yeah. ये जो कैलकुलेशन किया उसके फार्मूले यहाँ पर, जो मेकर्स के जो कैलकुलेशन किए, these are the two formulas used।